Good morning, class. Are you ready to watch this video? Okay. Can you think that what was explained in your previous class? I think I explained you about keywords and identifiers in previous class. Okay, beta. Can you remember? Now, today I am going to explain literal. Literal is a type of tokens. In previous class, I explained you some examples of tokens. So, literal is also a type of token. Okay, beta? And literal actually represents a value. Any type of value. For example, string type of value, numeric type of value, or boolean type of value. Such values are called literals. Okay, beta? And here I have given its definition. You can read from here. And some types of literals I have given: string literal, numeric literal, boolean literal, and special literals. Okay. So today in this class I am going to explain you what are the string literals and numeric literals. Okay, beta. So first of all, you must know what is string. Actually, string is a collection of some characters. String is a collection of some characters, and collection of that character is kept in double quotes or single quotes. That is called string. Okay, and this value is called string literal simply. Some examples of strings are given here. You see, beta, in double quotes I have written ABC, or in single quotes I have written ABC. So these are two examples of strings. And second example, 1 2 3 kept in double quotes, or 1 2 3 kept in single quotes. That is, if numeric value is kept in double quotes or single quotes, that is also considered as a string. Okay, beta? So by this time you have got about literals and types of literals. Mein one of this is string literal, and now you have got what is string. Okay, beta? एंड नीचे लिखा हुआ अबव वैल्यूज कैन बी कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग लिटरल्स. तो मैंने अभी बताया कि जो वैल्यूज हैं, दीज वैल्यूज आर कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग लिटरल्स. ओके बेटा? तो स्ट्रिंग को कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं आपको अभी दिखा देता हूं यहाँ पे कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग स्ट्रिंग्स को कैसे देखेंगे. तो जस्ट इसके लिए आई वांट टू शो यू फ्रॉम प्रोग्राम्स समथिंग. ओके बेटा? तो इन प्रोग्रामिंग आई जस्ट ओपन दिस. कैन यू फाइंड दिस स्क्रीन बेटा? यहां पे बेटा जैसे देखिए मैंने लिखा फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू abc. इफ आई राइट लाइक दिस, so here abc is a string literal, and if we want to print this value, then we can type print s like this, and you can get this output. Now you have got ABC is at output. Okay, beta? This is string literal. And if I write like this, S1 is equal to, मान लीजिए S1 is equal to, in single quote if I write X, Y, Z, and I print S1, और इस S को हमने कमेंट बना दिया. Then if I execute, this is X, Y, Z. Okay, beta? So both are the string, and strings can be printed like this. So whatever we write in double quote or single quote, that is considered as string. Okay? एक और चीज बेटा यहाँ पे बता दें. जैसे मैंने लिखा बेटा that a is equal to 7, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं a plus 2. मैंने लिखा, तो मैंने अगर a plus 2 लिखा, then see what is its output. You can find its output is 9. Okay beta? But if I write like this, a is equal to, in single quote, 7, and now if I write print a plus 2, now see what is its output. Now you got an error. Can only concatenate str to string. देख रहे बेटा क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज दिस टाइम यू हैव टेकन अ स्ट्रिंग,
but in string you have taken numeric value. But if numeric value is in single or double quote, that is considered as string. It means now you cannot perform arithmetical operations. तो दैट इज जैसे आपने पहले किया था a+2 तो 7 में 2 ऐड हो गया था, बट नाउ 7 इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, सो नाउ यू कैन नॉट ऐड दिस वैल्यू. ओके, दैट इज ऑन स्ट्रिंग्स यू कैन नॉट परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन. मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग्स. इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी मैंने आपको स्ट्रिंग बताया था. अब उससे रिलेटेड एक टर्म आगे है एस्केप सीक्वेंस. तो फर्स्ट थिंग आपको मालूम होना चाहिए एस्केप सीक्वेंस क्या होता है. अभी मैं देखिए आगे आपको एस्केप सीक्वेंस वहां पे कुछ लिखे हैं उनको बताऊंगा. थोड़ा सा एस्केप सीक्वेंस के एग्जांपल्स मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं पहले, फिर एस्केप सीक्वेंस के नोट्स को बताता हूं. ये जो प्रोग्राम बताया बेटा समझ में आ गया? अब देखिए सम कोड्स रिलेटेड टू एस्केप सीक्वेंस. एस्केप सीक्वेंसेस क्या क्या है, इसको भी मैंने कमेंट बनाया. यहां देखिए एक एस्केप सीक्वेंस में बता रहा हूं. अभी एस्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन बताता हूं और क्या है वो सब भी बताता हूं. इसी लिटरल के अंदर आते हैं, एक्चुअली कैरेक्टर लिटरल्स कहलाते हैं. इस जो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड कैरेक्टर लिटरल. ओके, बट ये जो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं दे आर फॉर्म्ड विद 2 or more than 1 characters. Okay, they are formed with 2 or more than 1 characters. They are formed. 2 or 3 characters भी हो सकते हैं, उनसे मिलकर के बनते हैं. इन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस. ओके, तो दे आर यूज्ड विद स्लैश सिंबल. जनरली दे आर यूज्ड विद स्लैश सिंबल्स लाइक दिस. यहां पे देखिए जैसे प्रिंट एबीसी, यहां मैंने लिखा /n और देन एबीसी लिखा है. तो यहां बेटा जो /n लिखा है दिस इज मीनिंगफुल. इस /n का मीनिंग है कि आफ्टर दिस व्हाटएवर वी विल राइट दैट विल बी प्रिंटेड इन नेक्स्ट लाइन. ओके, तो /n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट लाइन को. तो ये कैरेक्टर है दो एक्चुअली. फर्स्ट वन इज स्लैश एंड सेकंड वन इज n. तो दो कैरेक्टर्स मिल करके एक कैरेक्टर को फॉर्म कर रहे हैं. नेम ऑफ दैट कैरेक्टर इज नेक्स्ट लाइन. वो जो नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर है, तो आपको ये नेक्स्ट लाइन दिख नहीं रहा है, बस आप टाइप करते हैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता है. इस तरह के कैरेक्टर्स को नॉन ग्राफिक कैरेक्टर भी कहते हैं. तो जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं इनको नॉन ग्राफिक कैरेक्टर भी बोला जाता है. तो /n का मीनिंग क्या है और आउटपुट क्या है देखिए इसको. नाउ बेटा, नाउ यू सी ABC इन डिफरेंट लाइंस. ओके, इन डिफरेंट लाइंस. व्हाई दिस इज इन डिफरेंट लाइन? बिकॉज ऑफ दिस /n. /n for is used to set any text in next line. /n for this. Now in next line एक देखिए और मैं एस्केप सीक्वेंस आपको दिखा रहा हूं, इसको भी हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं. /t also. /t मींस होता है एक टैब के इक्वल स्पेस. आपके टेक्स्ट के बीच में टैब के इक्वल एक स्पेस छूट जाएगा. दैट इज बिकॉज ऑफ /t. ये भी एक एस्केप सीक्वेंस है. तो इसको भी नॉन ग्राफिक कैरेक्टर बोलते हैं क्योंकि टैब जो है हम टैब प्रेस करते हैं बट नथिंग यू कैन सी, ओनली स्पेस इज देयर. ओके, तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स. तो यहाँ /t का मीनिंग क्या है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ /t. नाउ यू सी इट्स आउटपुट. आउटपुट में बेटा देखिए ABC देन एक टैब के इक्वल स्पेस है. यू नो व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट साइज ऑफ टैब? Its by default size is around ½ inch. Okay, so it is ABC and tab के equal space है then ABC. Okay बेटा, so this one is /t is escape sequence. Similarly other escape sequences are also here. This one also you can find ABC/ then single quote. /single quote का मतलब क्या है? यहाँ पे केवल सिंगल कोड प्रिंट होगा, / नहीं प्रिंट होगा. ओके, बिकॉज ये भी दो कैरेक्टर से मिलकर बना है. इसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप सीक्वेंस. ये सारे एस्केप सीक्वेंस ही है बेटा. जैसे / के बाद मैंने लिखा है कॉमा, एक सिंगल कोड, देन / के बाद B लिखा है, ये बैक स्पेस के लिए. / के बाद डबल कोड लिखा है, ये भी एक एस्केप सीक्वेंस है. ये डबल कोड को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, तो देखिए / के बाद इसका आउटपुट क्या है? यहां पे देखिए मिल गया. इसको मैंने हाइड किया. नाउ ट्राई टू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस.
यहां देखिए बेटा स्लैश बी है, तो बी ने क्या किया, एक स्पेस बैक कर दिया, तो यहाँ ए बी के बाद एक्स वाई जेड है, ये सी गायब हो गया, एक स्पेस बैक कर दिया, एक प्लेस बैक कर दिया इसने। स्लैश बी इज यूज टू बैक वन प्लेस। ओके बेटा, नेक्स्ट इसको भी कमेंट बनाया और नेक्स्ट के कमेंट्स को रिमूव किया। यहां देखिए स्लैश के बाद डबल कोट्स है, तो बीच में आपको केवल डबल कोट मिलेगा। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स थे ये सारे स्केप सीक्वेंसेस कहलाते हैं। स्केप सीक्वेंस जो होता है वो एक कैरेक्टर लिटरल होता है। एक्चुअली स्केप सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर लिटरल, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया बिकॉज वी वर डिस्कसिंग लिटरल्स। तो दिस इज वन ऑफ देम, कैरेक्टर लिटरल। ये स्केप सीक्वेंसेस हैं। अब इसके बारे में देखिए, नोट्स में मैंने कुछ लिख रखा है स्केप सीक्वेंसेस के बारे में, वहां पे आप देखिए। Here देखिए, I have given some escape sequences. यहां पर देखिए बेटा, escape sequences मैंने लिख रखे हैं स्लैश एन स्लैश बी स्लैश टी डबल स्लैश स्लैश के बाद सिंगल कोट स्लैश के बाद डबल कोट। These are some examples of escape sequences. ओके बेटा, अब देखिए यहां पे इन स्केप सीक्वेंसेस के बाद में जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इसको मैं बता रहा हूं, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। अब देखिए अगला है नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। मैंने भी बोला था नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स के बारे में, जिन कैरेक्टर्स को हम डायरेक्टली टाइप नहीं करते हैं, जनरली दोज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। यहां पे उनके बारे में मैंने लिख रखा है, ये नोट्स में भेज दूंगा, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो आगे मैंने एक चीज और भी लिखी है, इन द अबव लिस्ट ऑफ द स्केप सीक्वेंसेस, जो भी मैंने अभी स्केप सीक्वेंस की लिस्ट दी है उसके बारे में कह रहे हैं। इन द अबव लिस्ट ऑफ स्केप सीक्वेंसेस दो सम कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड फ्रॉम कीबोर्ड, but when used without escape sequences these carry a special meaning. However, if these are typed as it is, these escape sequences should be used. एक्चुअली क्या है कि जो डबल कोड सिंगल कोड है, इनको प्रिंट करने के लिए जैसे मैंने बताया था अभी नॉन ग्राफिक कैरेक्टर, तो जो स्लैश एन था स्लैश बी था स्लैश टी था, ये तो नहीं दिख रहे थे, नॉन ग्राफिक थे। लेकिन जो डबल कोड है सिंगल कोड है, ये ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं, इनको हम टाइप करें तो ये दिखते हैं। तो ये नॉन ग्राफिक तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी ये इस लिटरल के अंदर आते हैं, ये स्केप सीक्वेंसेस में आते हैं। रीजन इनका क्या है कि जब इनको हम स्केप सीक्वेंसेस के साथ यूज करते हैं तो इनका मीनिंग एज इट इज डबल कोड सिंगल कोड या स्लैश यही होता है। अदरवाइज अगर इनको यूज करते हैं डायरेक्टली हम विदाउट स्केप सीक्वेंस अगर ये यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन कैरेक्टर्स को जो देखने में नॉन ग्राफिक नहीं लग रहे हैं, इनको जब हम विदाउट स्केप सीक्वेंस यूज करते हैं तो इनका मीनिंग एक्चुअली स्पेशल होता है और अलग होता है। ओके, तो अगर डबल कोड सिंगल कोड जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, इनको डायरेक्टली हम एज इट इज यूज करना चाहते हैं, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी मस्ट यूज देम विद स्केप सीक्वेंसेस। ओके बेटा, और स्केप सीक्वेंसेस क्या है ये भी मैं आपको प्रोग्रामिंग में समझा चुका हूं। एक बार फिर से उसी पॉइंट पे आपको हम ले चलना है स्केप सीक्वेंसेस में, जहां प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था। यहां देखिए सम स्केप सीक्वेंसेस आई हैव यूज्ड। तो जो हम बता रहे थे कि जैसे डबल कोड हमने प्रिंट किया, तो यहां देखिए बेटे डबल कोड आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये एज इट इज डबल कोड अगर हमें प्रिंट करना है तो हम स्लैश के साथ डबल कोड लगाएंगे तो ये एज इट इज आएगा। अदरवाइज डबल कोड का मीनिंग अलग है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डबल कोड में स्ट्रिंग लिखते थे, तो वॉट एवर इज रिटन इन डबल कोड दैट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। तो हमारा डबल कोड का मीनिंग दूसरा है जब हम विदाउट स्केप सीक्वेंस यूज कर रहे हैं। लेकिन जब सिर्फ डबल कोड हमें यूज करना है, उस केस में हम कैसे यूज करेंगे, विद स्केप सीक्वेंसेस हम यूज करेंगे। ओके बेटा, बाकी इसके अलावा आई विल डिस्कस ऑन वेबएक्स। आफ्टर दिस यू कैन ज्वाइन ऑन वेबएक्स एंड आई विल एक्सप्लेन यू सेम थिंग्स एंड सम अदर थिंग्स ऑल्सो। ओके बेटा, now I am going to stop this video. Thanks for watching.